Hello, people. Welcome to the session. I'm Rachita Saraswati with your Vedanta chemistry master teacher. I hope सब मस्त चल रहा होगा, स्वस्थ चल रहा होगा. So भाई और बहनों, आज हम लोग करने वाले हैं top 5 long answer questions of matter in our surrounding. अभी आप लोग ज्यादातर अपना focus at this point of time last 2 chapters पर लगाते हो, that is structure of atoms and molecules. लेकिन matter in our surrounding को नहीं भूलने का है बॉस, क्योंकि एग्जाम में पूरा सिलेबस आता है. So let's go through top 5 long answer questions जहां पर आप लोगों को ये समझ में आने लगेगा कि keywords क्या यूज करने हैं. These are the most frequently asked questions in your paper. और हो सकता है आप लोग शायद रिलेट भी करो कि हाँ मैम ये मेरे एग्जाम में आया था, यस मैम ये मेरे पीरियोडिक टेस्ट में आया था. So questions are something which is the most repeated and most commonly asked questions in your paper. So guys, let's get ourselves started with a big smile. So let your smile shine all day long. अगर smile करते रहोगे and you'll be positive, तो positive attitude के साथ सब कुछ अच्छा जाता है. चलिए, on that note, जागृति फटे and let's solve some chemical literature. Starting up with question number 1, जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन जो है सब पार्ट्स में दिए हैं. First is a gas fills completely the vessel in which it is kept. तो क्या रीजन है वो पूछ रहा है. रीजन बोले तो आपको कीवर्ड्स उसमें मेंशन करने पड़ेंगे. तो ऐसा क्या रीजन है गैस का कि अगर हम उसको किसी भी कंटेनर में फिल करते हैं दैट कंप्लीटली फिल्स द एंटायर कंटेनर, एंड दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है गैसेस की. क्यों होती है? क्योंकि इनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है और अट्रैक्शन लीस्ट होता है. तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इनका मूवमेंट पार्टिकल्स का इतना ज्यादा होता है दैट दे फेलोफाई एवरीवेयर. तो वो फैल जाते हैं, बिल्कुल है ना. दैट्स हाउ वी दे फिल द एंटायर कंटेनर. Second part, they are asking a gas exert pressure on all the directions. So moreover, same ही reason है. Kinetic energy बढ़ने से they were going to collide with each other as well as with the walls of the container. तो जब वो collision करते हैं तो pressure create होता है. और gases के अंदर pressure is the unique ability, क्योंकि gaseous particles बहुत ज्यादा move करते हैं in random directions. So again, gas exerts pressure because of high kinetic energy. और high kinetic energy क्यों होती है? क्योंकि उनके बीच में space बहुत ज्यादा होता है, राइट? तो आप सारी प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आप अपना आंसर को कैसे लिख पा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग वुडन टेबल इज कॉल्ड सॉलिड. तो बहुत सारे तो सॉलिड के प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर. जितने भी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप लिख सकते हो. कैसे? Wooden table is a solid क्योंकि आप उसे तोड़ नहीं सकते. It's rigid, particles are very close to each other, space is least है ना, as well as they do not dissolve easily, or it does not float. It's not a fluid है ना, तो ये flow नहीं करती. It's not a fluid, rigid है. So you can write n number of properties of solid for wooden table. राइट, दैट कुड बी योर आंसर. तो जितने भी आप प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच करोगे दैट वुड बिकम योर कीवर्ड. समझ लो? क्लियर बॉस? डेंसिटी काफी काफी ज्यादा होती है. ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. We can easily move our hand in the air, but to do so in a solid wood block, we need a karate expert. अब इस wooden table को तोड़ने के लिए we need a karate expert. But ऐसे हवा में हाथ घुमाने के लिए we don't need any efforts. It's the effortless process. ऐसा क्यों है? Just because space है यहाँ पे, particles के बीच में gases में इतना ज्यादा space होता है that movement is not restrictive. हम घुमा सकते हैं अपना हाथ. But solids के केस में particles are too close to each other, means interparticle space is least. Force of attraction maximum होता है. तो इन आपका कीवर्ड क्या है? Force of attraction. Gaseous particle में force of attraction least, whereas solid particles में force of attraction highest होगा. So boss, I have mentioned all the keywords by underlining them. तो आप लोग अंडरलाइन कीवर्ड्स पे जरूर फोकस करना, ठीक है? मॉलिक्यूल्स फिल गैसेस जो है वो फिल कर देते हैं पूरे वेसल को. हाई काइनेटिक एनर्जी, मूव इन ऑल डायरेक्शन. दे क्रिएट और एक्सर्ट्स प्रेशर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट मोशन. हाई काइनेटिक एनर्जी, दे कोलाइड विद ईच अदर, वाइब्रेट करते हैं, एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर आल्सो उनका कोलिजन होता है.
Now, next question that was asked कि wooden table solid क्यों मानी जाती है? Because no intermolecular space cannot be compressed, cannot flow, and characteristic जितने भी है solid की density बहुत ज्यादा होती है ना? तो आप ये सब लिख कर आ सकते हैं. In D part, they have asked you about कि अगर हम हाथ हवा में घुमाना चाहें तो it's very easy, but solid को हमें break करने के लिए karate expert की जरूरत है. So as I said, so force of attraction is something जो कि आपका keyword होना चाहिए, की term होना चाहिए to explain your entire answer. क्या हो रहा है बॉस? चलिए. Moving on to our next question. Explain interconversion of three states of matter with the help of flow chart. And name the processes of interconversion. ये आपके 3 मार्क का क्वेश्चन है. And this is very common question और आप लोग इसमें I don't think so कोई गलती करेगा. आप लोग ने क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस वाला नहीं पढ़ा है ना? सॉलिड टू लिक्विड को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं. देन उसके बाद लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो हम उसे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग बोलेंगे. सो यू कैन क्रिएट अ कंप्लीट फ्लो चार्ट लाइक दिस और हर एक प्रोसेस को आप नाम दे सकते हैं. ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में. तो ये डायग्राम आप लोग ने कई बार देखा है, आपने सॉल्व करा है ABC करके, है ना? तो आपसे ये पूछा भी जाता है ABCDE. फिल व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C, व्हाट इज D. अब इस बार उसने पूरा फ्लो चार्ट ही बनवा लिया आप लोगों से, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. समझना? सो सॉलिड टू लिक्विड, ये आपका सॉलिड है, पार्टिकल्स आर रियली क्लोज, ये लिक्विड है और ये गैस है. राइट? सो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कह सकते हैं. लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं. गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस यू कैन राइट बॉइलिंग. देन डिपोजिशन, अगर सॉलिड से गैस से सॉलिड आता है डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट्स, दैट डिपोजिशन, और उसका उल्टा विल बी सब्लिमेशन. Sorted, done and dusted. Okay, next question. Explain how rate of evaporation of liquids is affected with. Rate of evaporation बोले तो speed of evaporation increase with increase in temperature of liquid. So rate of evaporation will going to increase. अब इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को याद रखना है what. What is what? What का मतलब है W for wind speed. ठीक है? H बोले तो ह्यूमिडिटी, A सरफेस एरिया और एरिया. ठीक है, इसका पूरा नाम लिख सकते हो सरफेस एरिया, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड. ठीक है, तो ऐसी एरिया, सरफेस एरिया. T फॉर टेम्परेचर. अब आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू रेट ऑफ एवेपोरेशन, बस ह्यूमिडिटी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करती है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले तो अगर हीट बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, बाकी सब एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं. ठीक है? सो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बोले तो रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज होगा. डिक्रीज इन एक्सपोज सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी डिक्रीज होगा. बट गाइस प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये जो ROE है ना, ये आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकते. ये मैं सिर्फ यहाँ पर क्लास में लिखने के लिए यूज कर रही हूँ, बट दिस इज नॉट समथिंग जो आप अपने पेपर्स में यूज करेंगे. आपको पूरा लिखना होगा. स्पेलिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन, ये अब्रिविएशन is not valid for your paper. ये abbreviation valid नहीं है. मॉइस्चर अगर इंक्रीज होता है बोले तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रहा है. ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज होगा. विंड स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो फिर रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ेगा. आपसे उसने बोला है कि क्या होगा, है ना? अब उसके साथ साथ ये बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ the rate of evaporation of liquid is affected with it. तो आप लोग चाहे तो एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा. सरफेस एरिया बढ़ने से ऑब्वियसली रेट ऑफ एवेपोरेशन में इंक्रीज आएगा. ह्यूमिडिटी बढ़ने से या ह्यूमिडिटी कम होने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता है. ऐसा क्यों? ह्यूमिडिटी कम होने की वजह क्या होती है कि हवा में पानी
का जो कंटेंट है वो कम है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन अपने आप बढ़ेगा, राइट? सो यू कैन गिव 1 line explanation if you have time. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वाले बहुत इजी थे, इसको देखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही पूछ लिया इन लोगों ने, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स अ डैम सिंपल क्वेश्चन एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट और इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो. ऑलराइट, तो उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाइल हीटिंग आइस इन द बीकर, आइस को हमने हीट करा, ठीक है, बीकर के अंदर, और उसके अंदर हमने थर्मामीटर डाल दिया सस्पेंडेड इन हीट, और स्टूडेंट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करे. रिकॉर्ड करते टाइम उन्होंने डेटा लिख दिया कि टाइम 0 पर टेम्परेचर -3 था. बोले तो आइस का टेम्परेचर -3 से स्टार्ट करा है. फिर टाइम 1 मिनट हुआ तो -1 हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है. जब 2 मिनट हुआ टेम्परेचर 0, 3 मिनट है टेम्परेचर 0, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ एंड इट गोज टिल 100. 30 मिनट्स पे 100 पहुंच चुका है, 35 पे भी वो 100 ही है. समझ गए ना, डेटा समझ गए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टेट चेंज और चेंजेस ऑब्जर्व्ड बिटवीन 2 to 3 minutes and name the process involved. 2 to 3 minutes बोले तो 0, टेम्परेचर 2 मिनट पे भी 0 है, 3 मिनट पे भी 0 है. तो भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, हम लोग ने सिस्टम को हीट करा है ना, इस बीकर को हम हीट कर रहे हैं. हीट करने पे टेम्परेचर 2 मिनट और 3 मिनट पे कांस्टेंट कैसे हो सकता है, 1 मिनट के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं? सो द रीजन बिहाइंड इट, ये प्रोसेस क्या चल रहा है, फ्यूजन. फ्यूजन बोले तो मेल्टिंग चल रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला फेज है, जहां पे सॉलिड इज टर्निंग इनटू लिक्विड. आइस मेल्ट हो रहा है पानी के अंदर, ठीक है, इजी लग रहा है. अब नेक्स्ट पार्ट देखो, बिटवीन 30 to 35 मिनट्स, यहाँ पे क्या केमिकल लोचा चल रहा है, 30 से 35 मिनट के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो ये कह रहा है कि 100 है. स्टेट द रीजन फॉर दिस, क्यों है कांस्टेंट? जब आप हीट दे रहे हो तो थर्मामीटर पे टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो लेटेंट हीट है. लेटेंट बोले तो जो जाके सिस्टम के अंदर छुप के इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट में काम करता है. So basically the latent heat that will be consumed in converting from one state into another. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा, लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को गैसेस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बदलना है, तोड़ना है ना, ओवरकम करना है. उसके लिए ये छुपा हुआ हीट काम आ रहा है. इसीलिए टेम्परेचर थर्मामीटर पे कांस्टेंट है और जो बाकी का टेम्परेचर है वो कुछ और ही कर रहा है पीछे. दैट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो प्रोसेस का नाम हो गया. तो आपने कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस एक्सप्लेन करा, उसके साथ साथ आपने उसके प्रोसेस का नाम देकर डिफाइन कर देना है. डिफाइन क्या करोगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, व्हिच इज कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर. समझ ला. So majorly आपने यहाँ पे उसका रीजन दे दिया, heat supply just overcoming intermolecular forces and changing it into vapor or gases. Cool. Underline क्या क्या करना है देख लो इसके अंदर, है ना. latent heat of fusion, fusion को करा, latent heat of vaporization करा, और रीजन के बीच में भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं. बट आप डिफरेंट कलर के पेन्स एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, माइंड इट, ना ही ग्रेड 9 में और ना ही कभी और बोर्ड्स आगे भी. आप सिंगल कलर पेन का ही यूज करेंगे. अंडरलाइनिंग हैज टू बी डन यूजिंग पेंसिल. Alright, moving on to our next question. Comment on following statement, evaporation causes cooling. क्या बोल दी बाबेक, इवेपोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट देता है? क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है, जैसे ही वो अपने साथ पानी लेकर जाता है टर्निंग इनटू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट, वो अपने साथ साथ लेटेंट हीट ले जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन व्हिच मेक्स द सरफेस फील कूलर. ठीक है. नेक्स्ट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड स्पीड. तो क्या कमेंट करोगे कि इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से वाटर कंटेंट एयर के अंदर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है. तो ऑलरेडी वाटर कंटेंट हवा में इतना ज्यादा है कि वो और वाटर
अपने अंदर इतना आसानी से समा नहीं सकता है, तो इसीलिए जो इवेपोरेट होके पानी जा रहा है ना, उसका स्पीड काफी कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पॉन्ज, दो कंप्रेसिबल इट इज सॉलिड, ये आपका एक्सेप्शन है। स्पॉन्ज इज सॉलिड येट इट कैन बी कंप्रेस्ड, क्यों? सो एज यू ऑल नो, स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स के अंदर ऑक्सीजन इंट्रैप्ड, एयर इंट्रैप्ड रहता है। तो जैसे ही हम स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं, उन होल्स में से एयर एक्सपेल आउट होता है और वापस से आप उसको प्रेशर को रिलीज करते हो, एयर विल बी इंट्रैप्ड बैक अगेन। तो इसको सॉलिड सॉलिड क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज ये अपना शेप वापस रिटेन करता है, इसका फिक्स्ड शेप होता है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसीलिए हम इसको एज अ सॉलिड कंसिडर करते हैं। तो ये लाइन लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेट मी शो यू। So you have to like mention this line because it has definite shape and volume. वो वापस से अपना शेप रिटेन करता है, वॉल्यूम रिटेन करता है। ठीक है, तो ये लिखना लाइन को बहुत बहुत जरूरी है। Next question what they have asked is, ice is solid at 0 degrees Celsius. Yeah, it is solid. While water is liquid at room temperature. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? So solid का प्रॉपर्टी है कि उनका फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ice is a solid because it is having a fixed shape and fixed volume, whereas liquid at room temperature does not have fixed volume. Sorry, it does not have fixed shape but has fixed volume. Shape can be taken according to the container, but उनका volume fixed होता है. So ice, it's solid at 0 degrees Celsius, has definite volume, definite shape due to strong intermolecular forces. So 0 degree पे H2O के अंदर बहुत strong intermolecular forces होते हैं, whereas room temperature पे definite volume होता है, definite shape नहीं होता है, and due to that they have weak intermolecular force of attraction. ठीक है, इसलिए वो liquid हो जाते हैं at room temperature और at normal temperature. Lastly, आपसे पूछा गया, sugar crystals dissolve faster in hot water than cold water. ऐसा क्यों? Hot water बोले तो high temperature, high kinetic energy. We know that temperature and kinetic energy are directly proportional to each other. तो जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फटाक से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होते ही दे विल गेट डिफ्यूज इनटू ईच अदर, डिफ्यूज होते ही दे विल डिसॉल्व। जबकि कोल्ड वाटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी, कम होने की वजह से क्या हो रहा है, दे विल नॉट डिफ्यूज फास्टर, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन नॉट बी ब्रोकन दैट इजीली। तो इसीलिए चीनी को ठंडे पानी में घुलने में टाइम लगता है, जबकि गर्म पानी में वो बहुत जल्दी से घुल जाता है। यू नो दिस बेटर अगर आप चाय बनाते हैं तो, है ना? All right, guys. So those were top questions of matter in our surrounding, जो कि आप लोग revise कर सकते हैं. Again, you can save this video. But I have one more thing to tell you, which is super duper important. और homework question भी है, so do not miss it. So MVSAT exam, which is a scholarship test for all of you who can, and everyone will going to get a scholarship. Free registration है boss. Let me explain you why you have to give this. So offline exam dates आपकी screen पर है, 2nd, 3rd, 9th and 10th of December. So anyone can give it from grade 8 till grade 12, and centers will be available in these many cities. So guys, मिस करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ग्रेड 9 का अच्छा खासा रिवीजन होगा, सिलेबस ग्रेड 9 का आएगा, साथ साथ ग्रेड 8 का थोड़ा बहुत बेसिक्स आएंगे। आप लोगों को अपना ही सिलेबस वापस रिवाइज करने का मौका मिलेगा, and that will be really helpful for your final papers also. एटलीस्ट आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या ऐसे पेपर्स को आप हैंडल कर पाएंगे। एंड द best part here is that you'll get a short scholarship up to 100% on Vedantu's courses in offline high-tech interactive classrooms. और सबसे one of my favorite, जिसके लिए शायद मैं, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर टेस्ट देती, 5 day प्रोग्राम विद स्पेस रिसर्च सेंटर। तो आप लोगों को 5 दिन
के लिए इसरो स्पेस रिसर्च सेंटर में बिताने का मौका मिलेगा, and that will be only for top ranking students. So guys, that's a win-win situation. You're not losing anything. Registration is free. You don't have to pay anything. Scholarship में आप लोगों को अगर बहुत अच्छी आपको scholarship मिलती है and you get good marks, तो आपके आगे की पढ़ाई free हो सकती है, which is a huge deal. It's a big deal for the parents. उनके उनके कंधों से कितना बड़ा भार उतर जाता है. जेई नीट का प्रेपरेशन आप कर सकते हो, अपने बोर्ड का प्रेपरेशन कर सकते हो एक साथ, एंड 2-3 लाख रुपए फीस होती है अगर आप नॉर्मली जाते हैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने. So that could be free and your parents will never ever say no to you for this exam. So आप लोग अभी के अभी register कर सकते हैं इसके लिए. Drones, smart watches, telescope and many more. You can win exciting prizes. As I told you guys, re-registration. अब आप लोग का सिलेबस कैसा होता है? सिलेबस इज नॉर्मल, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसी में से आता है. नाउ द पैटर्न इज फॉर 8th and 9th ग्रेड स्टूडेंट, तीन सेक्शंस में आप लोगों के सवाल आते हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे. 60 मिनट्स का पूरा टेस्ट होता है एंड द गुड पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो आराम से. मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन एंड मेंटल एबिलिटी 5 क्वेश्चन. मेंटल एबिलिटी आप लोगों को करते रहनी चाहिए क्योंकि आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर में बैठोगे तो मेंटल एबिलिटी आता ही आता है. इनफैक्ट आगे जाके जब कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम दोगे तभी बिना मेंटल एबिलिटी के हम लोग उसे नहीं निकाल सकते हैं. If you have a siblings who are in grade 10, they have the same paper pattern as yours और उनका syllabus होगा. So they will also have a nice revision of their board exams. और 11th 12th आपके सीनियर्स अगर जेई एस्पिरेंट हैं, they can also definitely give exams. You can take a screenshot for them. 30 questions आएंगे उनके, 3 section, 10 each subject. Again, no negative marking and 60 minutes. So please keep the schedule with you. Save कर लो, save the date. Start date and end date Saturday to Saturday हो रहा है, 2nd December, 3rd December, 9th and 10th. So go to nearby center and give this test. This is super duper important for every one of you to at least attempt करने के ही आपको scholarship मिल जाएगा. So you can win exciting prizes as well. Register now for free. लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो जल्दी से उस पर जाओ. बेसिक डिटेल्स फिल करना है आपको, एंड वंस यू फिल दोस बेसिक डिटेल्स यू आर registered. Isn't that so amazing? All right, so let's applaud for our JE 23 students. And हो सकता है guys आगे जाके आप भी यहाँ हो. And these students are with us since so long time with Vedantu. सेम ईयर विद नीट 2023 भाई 4 दिया है हमारे स्टूडेंट्स ने. ओलंपियाड में हम लोग को गोल्ड मेडल मिला इन फिजिक्स, विच इज बिग डील क्योंकि ऐसा बहुत बहुत कम होता है स्टूडेंट्स के साथ who get gold medal in physics. So yes, that's a proud moment. We have some young wonders here, Aditi and Avnish, जिन्होंने हमारी नाक ऊंची कर दी है and made all of us very very proud. So you can be the one जो कि आप हमें भी और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराएंगे. So go for it guys. And it's a homework time. Deposition is chemical change, true or false? क्या लगता है भाई, क्या बोलती पब्लिक? डिपोजिशन क्या है, केमिकल चेंज और नॉट, ट्रू और फॉल्स? So I hope you love the session. अगर आपको ऐसे ही top questions चाहिए of different chapters also, do let me know in the chat box. Like, share and subscribe. Thank you guys. That was it from my side. This is me, Rashida Sir, signing off. Take care. Stay safe. Stay happy always. Bye.